مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس نئی روشنی کے لیے، باپ کے فضل کے لیے، رحم کے لیے جو ہمیشہ ہم پر کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا زبور 119 کی 50 میں جو ہمارا کلام تھا کہ مصیبت میں وہی ہماری تسلی ہے، اس کا کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، خدا کا زندہ کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جو تیرے منہ میں ہے اور وہ حق ہے۔ جو کلام خدا ہمارے منہ میں ڈالتا ہے وہ حق ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ ہالےلویا۔ جب ہمیں خدا کلام دیتا ہے اور کلام کی قدرت سے وہ ہمارے اندر کیا شادمانی کو بھر دیتا ہے۔ جب ہم زبور 119 کی جو آیات ہے کلام میں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو دن رات میں اس پر گیان کرتی ہوں، دھیان کرتی ہوں، تو وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں صبر جو ہے وہ خدا کے کلام سے ملتا ہے، اور صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ ہالےلویا۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہی میرا شافی ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں تندرستی دیتا ہے، چاہے آزمائشیں کیسے بھی ہوں جو انسان کی برداشت سے باہر ہوں۔ خدا پر جو بھروسہ رکھتا ہے وہ ان آزمائشوں سے باہر نکال دیتا ہے، وہ اپنی قدرت سے ہمیں بھر دیتا ہے، ہمیں وہ قدرت دے دیتا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم کیا کریں؟ اس آزمائش میں پڑے تو صحیح، پڑھیں گے ضرور، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیں اس آزمائش سے کیا کرتا ہے؟ باہر نکال لیتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں اپنی راہ پہ لے چلتا ہے، وہ ہمیں برداشت کی قوت طاقت سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے صرف ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے خداوند مجھے چھڑا۔ جب ہم اس سے مانگیں گے کہ میرے خدا میری مدد کر، تو وہ ضرور ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ اور جب ہم اس کے نام سے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو مسیح نام ہمیں دیا گیا ہے، اس نام کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی قدرت رکھنی ہے جو خدا نے ہمارے لیے دی ہیں۔ ہمیں صرف کلام پر توکل کرنا ہے، ہمیں صرف کلام پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا کا کلام جو زندگی بخش کلام ہے، جو قوت دیتا ہے۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 22 اور اس کی 24 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس نے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا۔ ہالےلویا۔ بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں کتنا خوبصورت زبور نویس ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل میں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو ہمارا خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ وہ نجات پانے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہالےلویا۔ اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ اپنی مانگنے والوں کو اپنے نام کی خاطر شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے نام کی خاطر وہ شادمانی سے بھرتا ہے، وہ اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ اور یہاں زبور نویس ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا ہمارے دکھوں اور مصیبتوں میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور خدا کی حضوری کے لیے شکر گزاری کرنے کی خاطر زبور نویس باقاعدگی سے وعدے کرتا ہے کہ ہم اس کی حمد و ستائش کرتے رہیں، اس کے حضور شکر گزاریوں کی قربانیاں اور نذرانے لے کے آئیں، تاکہ خداوند ہم سے خوش ہو۔ جب ہم خداوند کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں، بار بار کے کلام ہی میں بچائے گا اور نکھارے گا۔ اور خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ میں ان کو ان راہوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہ کو ہموار کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر کوئی مشکل ہے، اگر کوئی تکلیف ہے، تو ہمیں خدا سے مانگنا ہے، اسے کہنا ہے، ان کے وعدوں کو یاد کرانا ہے، جس طرح زبور 22 اور اس کا 1-2 میں ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد کر اور میرے نالے اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں رہتا۔ رات دن ہمیں اس کے حضوری میں رہنا ہے، رات دن ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو
खुद थे जो दुनिया में मेरे और आपकी निजात के लिए आए। उस बड़े कफ़ारे के लिए जो खुदा ने मेरे और आपके लिए दिया, वो कितनी मुश्किल में थे, कितनी तकलीफ़ों उन्होंने सही। उन्होंने भी खुदा से दुआ की थी, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा को पुकारा था। खुदा को जब वो सलीब पर थे तो उन्हें लग रहा था कि अभी मेरे पास बाप नहीं है, इसलिए वो पुकार रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो खुदा के सलीब पर बदन पे थे वो हमारे गुनाह थे, हमारी खताएं थी, हमारी गंदगी थी, इसलिए खुदा नहीं देख रहे थे। खुदा, इसका मतलब खुदा ने बेटे को नहीं छोड़ा था, वो हमेशा उनके साथ थे। आज भी हम भी उसके बेटे बेटियां हैं। अगर हमारे गुनाह गलतियां हमारे ऊपर हैं तो वो खुदा हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हमारे गुनाहों से नहीं। इसलिए हमें खुदा कहते हैं कि मैं पाक हूँ और पाक बनो। इसी तरह जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हम पाक बनते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कितने बड़े इख्तियार दिए गए, क्योंकि उन्होंने खुदा की पाक मर्जी को पूरा किया। इसी तरह अगर हम यशायाह नबी की मार्फत उसके 53:4 में और 5 में देखें तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। कितने गुनाह थे जो हमारे थे, हमारे खुदा ने बर्दाश्त किए, पर वो हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। कि जब गुनाह या गलतियां दुनिया में होती हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो कहते हैं ना कि इसने ऐसा किया होगा तभी इसी के लिए सारा ऐसा हुआ, लेकिन हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जैसे ज़बाह करने को लिए जाते हैं और जिस तरह भेड़ बकरियां अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान होती हैं, वो खामोश रहती हैं। अब देखा कि किस तरह हमारा खुदा बर्रे की तरह ज़बाह हुआ। हम देखते हैं कि अभी जो ईद मनाई गई थी बकरों की, और किस तरह ईद मनाई जाती है। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बाज़ जो बड़े हेल्थी जानवर होते हैं वो मार देते हैं, उनको कत्ल करना या उनकी कुर्बानी चढ़ाना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। बहुत सारी तरीक़ों से उन्हें पकड़ा जाता है और वो फिर भी भागती हैं। जो बड़ी बैल होती हैं, गायें होती हैं, और किस तरह उसको पकड़ के ज़बह किया जाता है। लेकिन यहाँ हमें बताया जा रहा है कि हमारे खुदा को किस तरह ज़बह करने के लिए, और खुदावन ने मार खाई, अपना मुंह तक नहीं खोला, मेरे और आपके लिए इतना बड़ा कफ़ारा दिया। और हमारे लिए खुदा बाप ने जो खुदा ने जो कुर्बानी दी थी, आज भी वो कुर्बानी हमारे लिए इसलिए दी गई ताकि मैं और आप अबदी ज़िंदगी पाएँ। ये खुदा के वादे थे हमें निजात देने के लिए कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो यहाँ हम अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में ही डूबे रहते हैं। हम उस बड़े कफ़ारे को भूल जाते हैं। लेकिन जब अगर मुश्किल है, परेशानी है, तो हमें सिर्फ खुदा की हजूरी से मांगना है, और मांगने पर खुदावंद हमें देता है। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है और कलाम पढ़ना है, और कलाम ही हमें सिखाता है कि हमने किस तरह मांगना है। और उसने तो वादा किया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने देने का वादा किया है। शर्त है कि हमें मांगना आना चाहिए। इसी तरह अगर हम ज़बूर 10 उसकी 1 और 11-12 में देखें, ऐ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों चुप जाता है। वो अपने दिल में कहता है कि खुदा भूल गया है। वो कभी हमें नहीं भूलता। वो हमसे अपना मुंह छुपाता नहीं, वो हरगिज़ नहीं देखेगा। हम ये कहते हैं, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, उठ ऐ खुदावंद अपना हाथ बुलंद कर, तो वो गरीबों को ना भूलेगा। वो गरीब मतलब जो दुनियावी तौर पर भी गरीब हैं और रूहानी तौर पर भी गरीब हैं, जब हम उसे पुकारेंगे तो मेरा और आपका खुदा हमसे कभी मुंह नहीं छुपाता, बल्कि हमें बरकत पे बरकत देता है। अगर हम इब्रानियों 5वां बाब उसकी 7-9 आयत को हम देखते हैं, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और
कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अबदी नजात का बाहिस हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा और आपका खुदा है जो हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए फर्माबरदारी पूरी की और खुदा के हुक्म को माना। अगर यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद तो खुद खुदा थे, उनको क्या ज़रूरत थी ये सलीब उठाने के लिए, उन्हें क्या ज़रूरत थी इतना कुछ सहने की, वो कह देते तो निजात आ जाती। लेकिन खुदा हमें यहाँ सिखाते हैं कि हमें कभी इसके थ्रू जाना पड़ता है। जिस तरह बाज़ लोग होते हैं, बीमार होते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते और ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खुदा ने हमें कलाम के ज़रिए चल कर सिखाया है कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें यकीन रखना है कि कभी हमारी निजात बीमारियों की, दुखों की, तकलीफ़ों की थ्रू होना ही पड़ता है। हमें ऑपरेशन के थ्रू जाके निजात मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और आज अगर हम देखें कि याकूब जो खुदा का रास्तबाज बंदा था, जब हम उसका कलाम देखते हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि किस तरह वो खुदा के साथ चलता था। और शैतान चाहता था कि वो हमेशा यही चाहता है कि उन लोगों को पकड़े जो खुदा में हैं, ताकि वहाँ भी जश्न हो, वो कोई भी वहाँ खुदा की तरफ ना जाए बल्कि सब उसी की तरफ आए। तो वो खुदा की हजूरी में गया। हम चाहते हैं कि चर्चेस में शैतान नहीं होते, शैतान होते हैं। वो चर्च में गया, खुदा की हैकल में गया और देखा, और खुदा से उसने कहा कि वो खुदा ने कहा तूने देखा है मेरा रास्तबाज बंदा जो फर्मा बरदार है, मेरी फर्मा बरदारी करता है। उसने कहा कि तू हाँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तूने उस पर बाड़ लगाई हुई है। अगर अपनी बाड़ हटा ले तो फिर मैं देखता हूँ किस तरह तेरा फर्मा बरदार रहेगा। खुदा ने उसे इजाज़त दी। हम देखते हैं कि यहाँ खुदा की इजाज़त के बगैर जो खुदा में चलते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदा के कलाम पर रहते हैं, रास्तबाज हैं, तो खुदा का कलाम हमें यहाँ सिखाता है कि शैतान को खुदा ने परमिशन दी। बगैर परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने जब उसे परमिशन दी तो कहा इसकी जान का नुकसान नहीं करना, बाकी सब कुछ करना। उसने उस पर एक ही दिन में उसकी सारी जो भी चीज़ें थी, बच्चे तक ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसने खुदा की नाशुक्री नहीं की। क्यों नहीं की? वो जानता था कि ये सब खुदा ने दिया है। अगर अच्छे दिन भी दिए तो बुरे भी आ सकते हैं। हर हाल में मैंने उसका खुदा का शुक्र करना है। उसकी बीवी को उसने कहा कि तू अब खुदा की कारत कर दे और बोल दे कि खुद उसने कहा ऐ औरत तू नहीं जानती कि अगर मैं खुदा के हाथ से सुख पाऊँ और दुख ना पाऊँ। उसने नाशुक्री नहीं की, बल्कि वो खुदा के कलाम पर कामिल रहा और डटा रहा। और लोगों ने भी उसके मजाक उड़ाए कि ये हो सकता है कि ये गलत था, इसलिए इतनी बड़ी आजमाइश उस पर आई है। और खुदा से उसने भी मांगा। उसने कहा याकूब 13:24 में देखें कि तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपने दुश्मन क्यों जानता है, कि क्यों खुदावन तू ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका तोक्कल भरोसा किस पर था? सिर्फ खुदा पर। इसी तरह अगर हम देखेंगे इसका पहला बाब 21-22 में भी कहा गया कि मैं नंगा माँ के पेट से आया था और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। इन सब बातों पे भी यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बिला वजह कोई तो ऐब लगा दिया कि वो खुदा की मर्जी है और खुदा ने किया, मैं तो खुदा को मानता था। ये सब कुछ उसने क्या किया? खुदा पर ही छोड़ा और ना ऐसी बात की जिससे खुदा को तकलीफ हो। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि चाहे मुश्किलें हों, परेशानियाँ हो, अगर रास्तबाजों के लिए तो ये खुदा की तरफ से। हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर तो कल करना है कि मैंने खुदा से मांगा है और मेरा खुदा क्या करेगा? मुझे सैर करेगा। मेरा खुदा क्या करेगा? मुझे भरेगा। हमने अपनी मुसीबत में सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है। आज हम यही सीख रहे हैं कि मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, हमने सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करना है और हमारा सब्र हमारे साथ साथ रहेगा। आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए है कि चाहे मुश्किलें हों, चाहे परेशानियां हों, चाहे कुछ भी हो, हमारा खुदा ना हमें छोड़ता है, ना हमें दस्तबरदार करता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें सिर्फ ईमान रखना है, हमने सिर्फ सब्र करना है, ताकि वक्त आने पर खुदावंद हमें क्या करेगा? उसका अजर देगा। हालेलुया। और खुदा का जिंदा कलाम हमें जिंदा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि खुदा के मुंह से निकली हुई हर बात से जिंदा रहता है। प्रेज द लॉर्ड।
ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اگر آزمائے جاتے ہیں تو بھی ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب لوگ میری وجہ سے تمہیں ستائیں گے، کچھ بھی کریں گے، خوشی کرنا، خدا میری اور آپ کی خوشی چاہتا ہے، کیونکہ آسمان پر تمہارے لیے بہت اجر ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے چاہے کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں ہو جائیں، ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے، اور خدا کا شافی ہاتھ ہمیشہ ہمیں بچائے گا۔ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور سب کے لیے کلام کی قدرت کو، قوت کو مانگتے ہیں۔ تمام گھروں میں خدا باپ آپ کی پاک حضوری کو مانگتے ہیں۔ تمام بیماروں کے لیے باپ جی آپ کا شافی ہاتھ مانگتے ہیں، تاکہ خدا باپ وہ شفا پائیں اور آپ کے پاک اور زندہ نام کو جلال دیتے رہیں۔ آج یسوع کے نام سے ہر کمی، ہر کمزوری، ہر بیماری، ہر لعنت یسوع کے نام سے جائے، کیونکہ ہمیں یسوع نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خدا باپ اسی نام سے ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں اور سب کے لیے برکت کو مانگتے اور برکت کو دیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے خدا باپ آپ کا جلال، آپ کا فضل ہم سب کے بدنوں سے ظاہر ہوتا رہے۔ آمین، ہاللویا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ کلام کو شیئر کریں، کیونکہ خدا کا یہی منصوبہ ہے کہ ہر گھر میں کلام جائے اور ہر زبان میرے خداوند خدا کا شکر کرے۔ آمین، آمین۔